So good morning student. Last class we have read about the fund based accounting. Okay. So today we will continue about we will solve some practical questions. Before solving some questions, we are discussing some important terms already which we have discussed where it is to be shown. So first one is your entrance fee. Entrance fees. Already we have read in the last class. एंट्रेंस फी का मतलब क्या होता है? इट इज द एडमिशन फी. ओके, तो एडमिशन फी व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बाय द एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. दीज फीस जनरली आर रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है? ये पैसा बार बार आता है. ओके, एज आई हैव सेड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा आइटम लेंगे? ओनली आइटम्स रिलेटिंग टू द रेवेन्यू नेचर. ओके, रेवेन्यू नेचर मींस any item which any expenses or any income which incurs again and again. Okay, so entrance fees where it will be shown? It will be shown in the income side. वो कहाँ जाएगा? वो income side में जाएगा. Income side of income and expenditure account. Okay, why? Because this entrance fees is a recurring in nature. Okay, second bit is the life membership fees. Life membership fees. Now life membership fees का मतलब क्या होता है? ये पैसा आपको एक बार मिलता है. To become the permanent member of an organization, we have to pay the amount once. तो ये पैसा एक बार मिलेगा मतलब this amount would be capitalized in nature. Okay, so that means where it will be shown? इसको कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? This will be shown on the liability side of the balance sheet. Liability side of the balance sheet, that means how it will be shown? It will be added to the capital fund. It will be added to the capital fund and it will be shown separately on the liability side of the balance sheet. जैसे already we know कि surplus आएगा तो capital fund से क्या करेंगे? Add करेंगे. Specific donations also we have to add, whereas life membership fees is also is to be added and shown in the liability side of the balance sheet. ठीक है. फिर third one is very important, that is a specific receipt. Specific receipt का मतलब क्या होता है? Specific receipt that means कभी-कभी क्वेश्चंस में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? Annual dinner, contribution for annual dinner. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन what they are doing, they are planned to do one dinner. ठीक है, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे? वो लोग contributions देंगे. So whatever the contribution which we have received, okay, from that dinner, तो that is known as what? Annual contribution to dinner. इसके अलावा और क्या हो सकता है? Annual contribution to dinner के अलावा annual expenses for dinner. So listen, whatever the amount which we have received, जो पैसा मिला, suppose annual contribution to dinner हुआ 50,000, ठीक है, और annual expenses हुआ कितना? 40,000. तो डिफरेंस फिगर कितना बचा? 10,000. So that is our what? That is our income. तो उसको हम कहाँ शो करेंगे? That will be shown on the income side of the income and expenditure account. और अगर खर्चा ज़्यादा हो गया, annual expenses is more than the annual contribution, that means the difference figure where it will be shown? It will be shown on the expenditure side of income and expenditure account. Why? Because this amount is recurring in nature. ठीक है. Next bit is your general donations. So general donation, as I have said, general donation का मतलब क्या होता है? Suppose क्वेश्चन में खाली डोनेशन दिया हुआ है, डोनेशन 10,000 or 20,000 whatever. Okay, so that means if only donation has been given without any specific purpose, that means that donation will be considered as what? General donations. Okay, so where it will be shown? It will be shown in the income side of the income and expenditure account. And last but not the least is the specific donation. So specific donation पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन का ये specific donation है. For example, suppose दिया रहेगा donation for prizes, donation for hospitals, donations for hospitals. That means इसका पर्पस दिया हुआ है कि ये डोनेशन कहाँ यूटिलाइज होगा? प्राइस के लिए. ये डोनेशन कहाँ यूटिलाइज होगा? हॉस्पिटल्स के लिए. That means this will be where it will be shown? It will be capitalized. मतलब it will be shown in the liability side. Liability side में शो करेंगे as an addition to the capital fund. Okay, so this will be also added to the capital fund. So now
we will start some question which we are getting in the board exam, full-fledged question. As I have said you earlier, your receipt and payment account would be given, and we are required to prepare income and expenditure account followed with the balance sheet. Okay, so please see the question and take a screenshot from the board. So here we can see the receipt and payment account has been given, adjustment has been given, so we are required to prepare income and expenditure account. So let us solve the question, income and expenditure account. So income and expenditure account. So as I have said, it is just like किसकी तरह है? It is just like profit and loss account. ठीक है? So here we will see the debit side को हम क्या बोलेंगे? Debit side is your expenditure side. It is our expenditure side. This is the rupees column. This is our income side. Now we will read the question and simultaneously we will solve the question. Okay. So सबसे पहले देखो सैलरी दिया हुआ है. सैलरी कितना दिया है? पेमेंट में 7,200. सैलरी मेरा क्या है? खर्चा एक्सपेंडिचर. So that is to salary. सैलरी कितना हो गया? 7,200. ठीक है, साथ में एडजस्टमेंट में देखते रहेंगे. परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल्स का एडजस्टमेंट दिया हुआ है. स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितना दिया हुआ है? 38,500. नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स वे 3800 ऑन 1 अप्रैल 2010. मतलब उसका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है एंड 4700 ऑन 31 मार्च 2011. दैट मींस योर टू स्पोर्ट्स मटेरियल्स. So purchases कितना दिया हुआ है मेरा? सबसे पहले ओपनिंग. So opening stock is being given how much? 3800. ओपनिंग में से हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? ऐड परचेजेस मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में. परचेजेस कितना है मेरा? 38,500 परचेजेस. फिर लेस क्या? लेस क्लोजिंग स्टॉक. So क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 4,700. ओके, तो 3,800 प्लस 38,500 माइनस 4,700. So that will be डिफरेंस में कितना आएगा हम लोग का? 37,600. ठीक है, उसके बाद देखेंगे परचेज ऑफ कंप्यूटर. लिसन, कंप्यूटर क्या है मेरा? कंप्यूटर इज आवर एसेट. ओके, सो इट विल नॉट बी टेकन इन आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. न्यूज़पेपर दिया है 850. न्यूज़पेपर शो करना पड़ेगा. टू न्यूज़पेपर कितना दिया? 850. अगेन बैलेंस कैरिड आउट, दैट इज द कैश बैलेंस हैज बीन गिवन 12,850. दैट विल नॉट बी टेकन. ठीक है, अब देखो नीचे एडजस्टमेंट देख लो. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग. देखो द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितना दिया हुआ है नीचे? 50,000 के ऊपर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा. दैट इज योर टू डेप्रिसिएशन. ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर में बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 50,000 के ऊपर में 5% कितना हो गया? 2,500. सो बिल्डिंग का हो गया 2,500. अगेन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिया हुआ है? 12,500. उसके ऊपर में कितना परसेंट? 10%. सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कितना आएगा मेरा? 1,250. ये कितना हो जाएगा टोटल? 3,750. ओके, सो दिस आर ऑल द पेमेंट साइड ऑफ द रिसिप्ट में पेमेंट अकाउंट. अब रिसिप्ट में देखो, रिसिप्ट में पहले बैलेंस बर्न डाउन दिया है, वो तो जाएगा सब्सक्रिप्शन 47,000. इनकम है हमारा. सो बाय सब्सक्रिप्शंस कितना? 47,000. ठीक है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. पहला बिट, देयर आर 500 मेंबर्स ऑफ द क्लब, ईच कंट्रीब्यूटिंग ₹100 एज सब्सक्रिप्शन ईच ईयर. 500 मेंबर था, कितना रुपए कंट्रीब्यूट किया? 100 रुपए. तो देखो मेरे पास में मेंबर्स कितने थे? एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा मेरा? एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 500 मेंबर्स था, 500 इंटू कितना? ₹100. तो कितना हो गया? 50,000 रुपीज मेरे को मिलना चाहिए 50,000. और मिला कितना है मेरे को? 47,000. मतलब इसका मतलब क्या होगा? 3,000 रुपए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग. ओके, तो आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे? इसी साल का पैसा है, इसी साल का पैसा हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. Okay, outstanding subscription will be how much? 50,000 में से 47,000 मिला.
मतलब कितना हो गया आउटस्टैंडिंग 3000। तो टोटल अमाउंट वुड बी सोन एज हाउ मच, सोन एज 50,000। उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 4800, डायरेक्टली इंटरेस्ट दे दिया है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज योर हाउ मच 4800, ठीक है। उसके बाद फिर सेल ऑफ फर्नीचर, देखो बुक वैल्यू कितना था 200 का फर्नीचर हम कितना में बेचे 380, मतलब कितना का प्रॉफिट हो गया 180 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना का था मेरा 380 माइनस 200, मतलब कितना का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका 180, ठीक है। फिर डोनेशंस दिया हुआ है कितना 5000, तो डोनेशन विल आल्सो बी शोन बाय डोनेशन इनकम है मेरा, डोनेशन कितना 5000 डोनेशन। उसके बाद फिर क्या दिया है मिसलेनियस इनकम दिया हुआ है कितना 3820, सो बाय मिसलेनियस इनकम, सो बाय मिसलेनियस इनकम कितना दिया हुआ 3820, ओके। और so all the adjustment which we have done, so now we are required to calculate the your surplus or deficit, okay. So we get the total of credit side, so total of credit side would be 63,800, okay, 63,800 minus debit side total, okay, and after subtracting the debit side total, okay, here you see पेमेंट में और एक चीज दिया हुआ था रेंट ऑफ प्लेग्राउंड दिया हुआ है कितना 4800, तो रेंट ऑफ प्लेग्राउंड भी खर्चा है हमारा, तो टू रेंट ऑफ प्लेग्राउंड कितना है 4800, ठीक है। सो डिफरेंस फिगर जो आएगा हम लोग का दैट इज योर डिफरेंस फिगर वुड बी योर नोन एज योर सरप्लस टू सरप्लस। So surplus would be 63,800 minus your total of expenditure side, and answer would be surplus would be how much 9,600. So this is how we are required to prepare income and expenditure account. Now next step is to prepare the balance sheet. As I had already taught you that there are two balance sheet which we are required to prepare. First of all, we are required to prepare the opening balance sheet. Okay, you see opening balance sheet. So why we are preparing opening balance sheet? To calculate the capital fund. Okay. So here we write assets rupees, then liabilities, and then rupees. Okay. देखो सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है 30,500, मतलब वो क्या है कैश इन हैंड ओपनिंग कैश। सो कैश इन हैंड हमको ओपनिंग का जितना है सब लेना है कितना 13,500, ठीक है। साथ में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया था एट द रेट ऑफ 8% 4,800, दैट मींस वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यू सी इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 4,800 दिया हुआ था, ठीक है, कितना परसेंट है 8% है, ओके। सो टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट वी हैव टू रेसिप्रोकल द परसेंटेज 8/100 होता है, इसमें क्या करेंगे इनटू 100/8, तो दिस विल बी रुपीस 60,000। सो रुपीस 60,000 इज आवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हियर वी विल राइट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मेरा, इन्वेस्टमेंट हो गया हम लोग का 60,000, ठीक है। इसके अलावा ओपनिंग क्या क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ था तुम्हारा 1 अप्रैल 2010 में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया 50,000। सो बिल्डिंग वी हैव टू राइट बिल्डिंग कितना 50,000 बिल्डिंग इज गिवन। बिल्डिंग के बाद फिर क्या दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिया हुआ है 12,500, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग है, सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 12,500 इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। उसके अलावा हम लोग के पास में क्या था, हम लोग का सेल ऑफ फर्नीचर में बुक वैल्यू कितना था 200, मतलब फर्नीचर हम लोग के पास में पहले से था 200 रुपये का फर्नीचर। सो फर्नीचर वी हैव टू शो ओपनिंग फर्नीचर कितना था हम लोग के पास में, ओपनिंग फर्नीचर वाज 200, ठीक है। अगेन योर हो गया कैश इन हैंड इन्वेस्टमेंट, योर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 12,500 बिल्ट इन फर्नीचर।
now again you see stock of sports materials कितना था 3800. So stock of sports material, so that is also your closing stock. Okay, so कितना था ये 3800. ठीक है, ओपनिंग का इसमें लेना है, क्लोजिंग का तुम्हारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट एज ऑन 31/3/2011. मतलब ये बैलेंस शीट कब का हुआ है हम लोग का एज एट 31 मार्च वो 11 है, तो यहाँ पे कौन सा होगा ईयर का 2010. So this is your opening year. ठीक है, so now we have got the, we are required to get the total, and total will be how much? Total will be 1,40,000 total आ जाएगा. और ये जो टोटल आएगा, ठीक है, so here answer would be what we have to write. आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कैपिटल फंड, within bracket what we will write? बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड. We have बैलेंसिंग फिगर कितना आया हम लोग का आंसर? 1,40,000. Okay, so this is how we are required to prepare the opening balance sheet. Okay. So now last part we are required to prepare the final balance sheet. So balance sheet as at 31st March 2011. ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे बाय बैलेंस कैरिड आउट दिया हुआ है कितना 12,850, दैट इज कैश इन हैंड. सो कैश इन हैंड हो गया हम लोग का कितना 12,850. इसके अलावा ऑल द एडजस्टमेंट वी हैव टू सी. देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था हमारे पास में 3,000, तो दैट इज योर एसेट क्योंकि वो पैसा मिलेगा हमको. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. Okay, so outstanding subscription is our how much 3,000. 3,000 रुपया हम लोग का बाकी था जो कि मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वाज देयर. ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट था तो क्लोजिंग में भी है इन्वेस्टमेंट, तो लेचे नहीं है. इन्वेस्टमेंट कितना था हम लोग का 60,000 वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड. ओके, उसके अलावा और क्या है? क्लोजिंग तो देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितना दिया 4,700. सो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2011 का कितना दिया है 4,700. दैट इज योर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स. इसके अलावा हमारे पास में क्या था? परचेज किए थे कंप्यूटर, कितना का कंप्यूटर था 10,300. सो कंप्यूटर 10,300. ठीक है, इसके अलावा हम लोग के पास में क्या था? बिल्डिंग था 50,000. सो फ्रॉम दैट वी हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन. वी हैव कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो बिल्डिंग वाज हाउ मच 50,000 लेस depreciation part. Depreciation we have already calculated how much 2,500. Okay, so difference figure would be how much 47,500. And after depreciation last one is sports equipment. So sports equipment कितना दिया है मेरा? Sports equipment. So sports equipment has been given 12,500. तो उसमें से depreciation minus हो जाएगा, plus depreciation कितना था 1,250. Okay, so the difference figure would be 11,250. ठीक है, so these are all your assets side. Okay, so after getting this asset, get the total. Total कितना आएगा 1,49,600. So this is your asset side of the balance sheet. Liabilities में देखो already we have calculated capital fund. Liability में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? Capital fund, opening capital fund, which we have already calculated. कितना कैलकुलेट किए थे हम लोग? 1,40,000. So 1,40,000 इसमें ऐड क्या करेंगे? ऐड हो जाएगा सरप्लस. हम बोले अगर सरप्लस होगा तो इसमें ऐड होगा, अगर डेफिसिट होगा तो इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ठीक है, तो सरप्लस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कितना था 9,600 सरप्लस. सो 9,600 टोटल कितना हो जाएगा 1,49,600. So this is your 1,49,600. So this is how you are required to prepare your balance sheet. So now I am going to solve the second question. Okay, so as from the board you can see the question following from the following receipt and payment account of a charitable dispensary. We are required to prepare income and expenditure account for the year ended as on 31st March 2019. You can see your payment side has been given: rent, salary, medicines purchased, machinery, insurance premium, electricity, and balance carried on. So again, balance brought down. Subscription 3 years has been given. Locker rent, entrance fee, and life membership fees. Okay, so adjustment are there. So let us start. Income and expenditure account. So income and expenditure account. So income
and expenditure account. So as we know that whatever the income would be there, that will be shown on the credit side, and whatever the expenditure would be there, that is shown on the debit side. So this is our expenditure and this is our income. Okay, so let us see. Let us start from the payment. Okay, so rent is given how much? 1,10,000. Adjustment you see bit number 4. 1 month rent is outstanding. So rent is given to rent how much? 1,10,000. And 1 month rent is outstanding. Outstanding का मतलब क्या? पैसा बाकी है इसी साल का, दोस्तों क्या करेंगे? ऐड करना पड़ेगा. So add outstanding rent 1 month का. देखो 1 month का आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? 1,10,000 जो है वो कितना महीने के लिए होगा? 11 months के लिए. तो 1 month का कितना होगा? 1,10,000 माइनस डिवाइड बाय 11 कितना हो जाएगा? ये 10,000. तो दैट इज योर 10,000. ओके, सो टोटल अमाउंट वुड बी हाउ मच? 1,20,000. एडजस्टमेंट के साथ में देख के करते रहना है. फिर सैलरी देखो, सैलरी कितना दिया? 60,000. सो टू सैलरी हाउ मच? 60,000 सैलरी. सैलरी के बाद फिर क्या दिया? मेडिसिन परचेज दिया है कितना? 30,000. एडजस्टमेंट यू सी बिट नंबर 3. ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 6,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 10,000. सो दैट इज योर टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. ओपनिंग स्टॉक इसका निकाल रहे हैं हम मेडिसिन का. ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन कितना दिया है? 6,000. उसमें ऐड करेंगे. ऐड क्या होगा? ऐड परचेसेस ऑफ मेडिसिन. परचेसेस कितना दिया हुआ है? 1 लाख. परचेसेस हैज बीन गिवन 1 लाख. लेस क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक. सो लेस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का कितना दिया है? 10,000. ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन पार्ट we have to do the calculation part. Okay, and after getting मेडिसिन का अमाउंट कितना दिया था? 30,000 दिया था. मेडिसिन अमाउंट इज 30,000. ओके, तो 30 plus 6 36 minus 10,000, दिस विल बी हाउ मच? 26,000. ठीक है, उसके बाद देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 30,000. सो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, रिकरिंग नेचर का है. सो टू इंश्योरेंस कितना? 30,000. इंश्योरेंस के बाद फिर क्या दिया हुआ है? फिर इलेक्ट्रिसिटी दिया है कितना? 20,000. सो टू इलेक्ट्रिसिटी इज अवर 20,000. सो इलेक्ट्रिसिटी हो गया हम लोग का 20,000. ठीक है, उसके बाद देखो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है हम लोग का मशीनरी लिखा हुआ है. परचेज ऑन 1 October 2018 कितना का मशीनरी था? 1 लाख. और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी चार्ज कितना बोला है? 10% पर एनम. साल भर का 10% है. ठीक है, तो हम लोग का परचेज किया था 1 October, मतलब 1 October till 31st March we are required to calculate. Depreciation will be calculated for how many months? For 6 months. Okay, so that is your 1 lakh का 10%. So depreciation we have to required to calculate. ठीक है, 6 months के लिए ऑन मशीनरी 1 लाख का कितना परसेंट था? 10%. फॉर 6 मंथ बोलने से इंटू 6/12 कितना आ जाएगा? ये दिस विल बी योर 5,000. ओके, सो दिस इज योर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. अभी देखो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन देखो 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है. सर कौन सा सब्सक्रिप्शन सर लेना है? हम लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कब का बना रहे हैं हम लोग? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31st March 2019 का बनाना है. तो 19 का मतलब 18-19 में सब्सक्रिप्शन कितना दिया है? 2 लाख. तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन. मेरा इनकम दिया हुआ है कितना? सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है मेरा? 2 लाख. बाय सब्सक्रिप्शन इज 2 लाख. ठीक है, उसके बाद देखो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट. So subscription has been given 2 lakhs. अब you read the adjustment. Adjustment में क्या दिया हुआ? पहला adjustment subscription. Second adjustment you see subscription outstanding as at 31st March 2019. कितना पैसा बाकी है हमको? हम कौन सा ईयर का बना रहे हैं? 2019 का. और 2019 मतलब करंट ईयर 2019 है. उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 41,500.
तो आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया मेरा 41,500, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। 1500 रुपया जो था वो पिछला साल का 18 का है, एरियर बाकी है, तो 18 का हम कौन से ईयर का बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019। तो 18 का पैसा क्या करेंगे, लेस करना पड़ेगा, सो लेस एरियर सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, कितना लेस करना पड़ेगा 1500, ठीक है। तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा, कैलकुलेशन 2,40,000। उसके बाद फिर और क्या दिया हुआ, लॉकर्स रेंट। लॉकर्स रेंट मेरा रिकरिंग नेचर का है, इनकम है बाय लॉकर रेंट। लॉकर रेंट कितना दिया है 30,000, सो लॉकर रेंट इज योर 30,000। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, एंट्रेंस फी। एज आई हैव सेड यू, एंट्रेंस फी हम लोग का रेवेन्यू नेचर का होता है, सो इट विल बी टेकन बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना दिया है 20,000, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे एज एन एडिशन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कैपिटल फंड, ओके, ठीक है। सो नाउ वी विल गेट द टोटल। अब हम टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा उसका 2,90,000, इसका टोटल आ रहा है 2,90,000, और डिफरेंस का माइनस टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर साइड एंड आंसर व्हिच यू विल गेट दैट इज योर सरप्लस। मेरा एक्सपेंडिचर साइड, मेरा income side is more than expenditure, okay, so we will get the surplus, and the surplus amount will be 29,000, difference here, and total amount is your 2,90,000, okay. So this is how we are required to prepare income and expenditure account. Thank you.